ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ VC ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਆਂਸਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਡੀਪਲੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ is responsible for everything over there. ਜੀ, they take all the calls. ਜੀ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੈਸ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਰੈਸ ਸੀ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਬਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੌਸ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਣ, ਟਾਈਮਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, right? Accountability of the officers at whatever designation they might be, and they have to be given due respect, that is there. एक perspective है। ਹੁਣ ਦੂਜਾ perspective ਹੈ, how did the minister reacted at that point of time? ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਕਿ ਬਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਹਾਉ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਵੇਖੋ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਲਸੋ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦੀ ਬੈਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। He should have right there told him that I will not do it. You cannot ask me to do it. You can of course question things, or if not doing well you can start the proper procedure through it. ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। Vice Chancellor should have said, and similarly it shows the mindset of the minister also, कि I am at a position where I can ask someone to do which affects the dignity of that person. Ultimately, Vice Chancellor is a respected doctor. If you look at his career, he's very well read, a learned person, a professor, a teacher, and then Vice Chancellor of a university, that person should be given due respect. How that person has to be treated. Of course, if person is not doing well, you start the procedure. ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਇਟ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡੀਪਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਬਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਟ ਨਾਟ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਐਨੀਵਨ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਇੱਕ PN ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ them ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਹੀ ਇਜ਼ 70, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਐਮਬੈਰੇਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਹਿਸ ਪੇਪਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਏ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਹੈਂਡਲਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀਸੀ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਟਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲੋਟਡ ਲੈਂਡ ਨੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟਰਸਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਕੇਟਡ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਲੁਕਡ ਇਨਟੂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से भी ज़्यादा ज़रूरी है ईज़ ऑफ जस्टिस। देखो, इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी डेप्थ है, आई रियली अप्रिशिएट इट। देखो, आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कई बार लोग कोर्ट के चक्कर लगाने से उनको लगता है इट्स सच ए प्रॉब्लम, और लोग अपने हकों के लिए लड़ते ही नहीं हैं। उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स जो एंटी सोशल हैं जी, जो जिनको पता है कि लॉ का प्रोसेस इतना स्लो और पेनफुल है, ज़्यादातर लोगों के साथ अगर हम थोड़ी बहुत बेईमानी भी करेंगे, इसमें कंपनियां भी फ़ायदा उठाती हैं। उनको भी लगता है कि अगर हम अपने कस्टमर्स को लूटते हैं तो केस करने किसी ने जाना नहीं है, एक आधा केस हुआ भी तो थोड़ा सा फाइन लग जाना है। तो पीएम मोदी ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है, और जो डिजिटल आज के डेट में टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके हमारे यहाँ पे जजेस की कमी है। कितने ही केसेस हमारे कई करोड़ केसेस हमारे अलग अलग कोर्ट्स में इस वक्त चल रहे हैं और जो पेंडिंग है, और स्टोरीज बनती हैं कि आदमी ने केस डाला, उसके पोते के टाइम पे फैसला आया जी। तो ये तो, और ये फैक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लेजेंड्स हैं या सिर्फ स्टोरीज हैं, और ऐसा कई बार हुआ है, कई इंसिडेंट्स हुए हैं। और ये एक ओपन सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ईज ऑफ डूइंग जस्टिस, ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस, एक मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी टर्म कॉइन की गई है। किसी भी देश में, सोसाइटी में लोग जो सबसे लोअर तबके के लोग हैं, उनको जितनी आसानी से उनको अपना न्याय मिल पाएगा, उतनी ही उस समाज के अंदर सुधार आएगा, उतनी ही वो समाज एक डेवलप्ड सभ्य समाज बनेगा, उसके अंदर उतना ही लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कम होगी। एट द सेम टाइम जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके हाथों कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन कम होगी। आज टेक्नोलॉजी के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू, मेरे को लगता है कि इंडिया को वो समाज बनना चाहिए कि जहाँ पे आपको न्याय पाना सबसे आसान हो,
राइट। अगर आपको न्याय मिलेगा तो आप अपने आप ही जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, जो ज़्यादा ईमानदार लोग हैं, वो ऊपर उभर के आएंगे। बिल्कुल सर, आपने इंडिया की डेवलपमेंट की बात की, और अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो उसके लिए हमेशा बात होती है कि पावर कंजप्शन है वो बढ़ेगी, और पावर प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी हमें, और उसके भी हमें ग्रीन तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पीएम मोदी आज ग्रीन का पावर प्रोजेक्ट्स को इनागुरेट करने जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से पिछले 200 सालों में डेवलपमेंट हुई है, अगर उसी तरीके से अगले 200 साल डेवलपमेंट हुई तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, राइट। जो वेस्टर्न कंट्रीज ने या यूरोप ने जिस तरह से पूरी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कॉलोनियल तरीके से, इंपीरियलिस्टिक तरीके से, जिस तरह से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की और दूसरे देशों के लोगों की एक्सप्लॉइटेशन की है, अब उस तरह से डेवलपमेंट सस्टेनेबल है ही नहीं। आप ऑलरेडी क्लाइमेटिक जो उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, हर जगह पे ज़्यादा खतरनाक बाढ़ आ रही हैं, ज़्यादा खतरनाक तूफान आ रहे हैं, ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये असर हमें दिखना शुरू हो गया है। टेम्परेचर्स आप देख लीजिए, आज गर्मी में ही पोल्यूशन से कितने लोग मर रहे हैं। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली इंडिया इंडिया जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के इनिशिएटिव में बहुत बड़े कदम उठा रहा है। हमारे ऑफ कोर्स ये हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर वुड बी डेवलप्ड इन अ ग्रीनर वे। एट द सेम टाइम वी हैव प्लान्स जहां पे हम अपने रोड ट्रांसपोर्ट को पेट्रोल फ्री करने की सोच रहे हैं अगले कुछ सालों में। तो अगर इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे तो हम अपने देश में ऐसा इन्वायरमेंट, एटलीस्ट एट द इंडिया लेवल, वी विल बी एबल टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ पे हमारे बच्चे खुल के सांस ले पाएं, हमारी ज़मीनों में पॉल्यूशन ना हो, धुएं से हम खांसते न रहें सारा दिन, कई बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस तरह के इनिशिएटिव मेरे को लगता है कि और बड़े स्केल पे करने की ज़रूरत है। अभी भी जो रिन्यूएबल तरीके से हम जो एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। जब तक हम इसको ऑलमोस्ट 100% पे नहीं लेके जाते, अनफॉर्चुनेटली अगेन जो ये ग्लोबल जो सिचुएशन चल रही है उसके कारण कोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी वो बढ़ रही है दुनिया में, क्योंकि ऑयल की सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई रुक रही है, लोग वापस कोयले पे आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये सही तरीका नहीं, और इंडिया एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बन सकता है। जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, अभी कल ही मेरी एक मीटिंग हो रही थी, पंजाब के मिनिस्टर भी मौजूद थे वहाँ पे, कुछ इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ भी मौजूद थे, और कुछ बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी मौजूद थे। तो पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स ऐसे पेटेंट लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर आप फ्लोटिंग तरीके से, पानी के ऊपर फ्लोटिंग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ये भी प्रोजेक्ट कुछ सिमिलर ही है। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हम ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया को टेररिस्ट कहा जाए और उसको कंसीडर किया जाए टेरर स्टेट। देखो, ये उनकी एक और विशफुल थिंकिंग है। इतने उनके ऊपर, आप रशिया के ऊपर आपने वेस्टर्न कंट्रीज ने इतने बैन, इतनी सारी चीज़ें लगाई रखी हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है? व्हाट इज यूक्रेन गेटिंग आउट ऑफ इट? और आज ज़ेलेंस्की जी की बात मान लें और बोल दें जी वो टेररिस्ट स्टेट है, तो इससे यूक्रेन के लोगों की सिचुएशन कैसे सुधरने वाली है? मेरे को ये लगता है कि ऐसी विशफुल थिंकिंग, ऐसी मीडिया से स्टेटमेंट देने के अलावा ज़ेलेंस्की जी को अब डीप पर सोचना चाहिए, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लोगों की सेफ्टी, उनकी बेसिक नेसेसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बैक टू डिस्कशन करनी चाहिए। रशिया को उकसाने की बजाय दे शुड सेटल डाउन, दे आर गोइंग टू बी नेबर्स फॉर एवर। जब तक कि कई मिलियन सालों में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आप टूट नहीं जाते फिर से और नए कॉन्टिनेंट्स नहीं बन जाते, तब तक ये नेबर है। तो एज अ नेबर, जो आपका नेबर आपको फिक्स्ड है, आप अपनी आसपास की कंट्री नहीं बदल सकते। बिल्कुल राइट। तो मेरे को ये लगता है कि रेदर देन जस्ट सीकिंग ऐसी टोकन चीजें एंड जस्ट गोइंग फॉर फोटो शूट्स इन वोग एंड अदर मैगजीन्स, इस वक्त उनका मेन काम है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस वॉर को रोकें, वापस अपने देश की डेवलपमेंट के लिए करें। और मेरे को लगता है कि अब यूक्रेन के लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए कि मोमेंट दिस वॉर स्टॉप्स, दे शुड बी गिवन अ चांस टू फाइंड देयर ओन लीडर। वहां पे इलेक्शंस होने चाहिए कि क्या वो ज़ेलेंस्की के अंडर खुश हैं। किसी ने नहीं पूछा। देखो, जब लड़ाई हो रही होती है, हर किसी के अंदर की देशभक्ति जागती है, हर कोई कहता है कि रशिया गलत कर रहा है, यूक्रेन के लोग यही बोलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्या कोई डीपली अगर उनसे पूछे क्या ज़ेलेंस्की के डिसीजन ठीक थे, क्या उन्होंने अपने यूक्रेन के लोगों के लिए सही किया, क्या लोग बेटर ऑफ हैं अंडर हिज रूल, और आफ्टर वॉर
विल ही बी द राइट लीडर टू रीबिल्ड द नेशन? मेरे को ये लगता है कि अब ये डीपर क्वेश्चन पूछने का टाइम आ गया है, और अगर जेलेंस्की नहीं कर पाते तो यूक्रेन के अंदर ही दूसरे पॉलिटिशियंस को इंश्योर करना चाहिए कि वो पुतिन के साथ रशिया के साथ बैकडोर डिस्कशंस करें और इस लड़ाई को इमीडिएटली खत्म करें, क्योंकि ये लड़ाई पूरी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है। पूरे दुनिया के गरीबों, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, पूरी दुनिया की ग्रोथ खतरे में है, और इससे कितने लोगों ने, जिन्होंने पॉवर्टी से उभरना था, वो सारे प्रोसेस एक बैक स्टेप ले लेते हैं। बेस्ट वेपन यूज करने की बजाय बेस्ट ब्रेन्स यूज करने चाहिए। एब्सोल्युटली सर, इसके साथ ही जो चाइनीज़ पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना में अब फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, चाइना ने भी, आई डोंट नो व्हाई, मे बी इनके इनका पॉलिटिको ब्यूरो सिस्टम है, क्योंकि अक्टूबर में हर 5 साल में कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत बड़ी मीट होती है जिसमें वो अपना अगला लीडर चुनते हैं जो अगले 5 साल तक रूल करेगा। तो जी जिनपिंग, मेरे को लगता है कि अपनी तीसरी टर्म के लिए चुने जाना उनका ऑलमोस्ट तय है, और वो अपने आप को एक मेजर लीडर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने जा रहे हैं। तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई कोविड इस तरह से ना फैले कि कहीं उस मीटिंग में प्रॉब्लम आ जाए, और अपनी उस जो उनके अंदर की जो है कि भाई मेरे को ही सुप्रीम लीडर रहना है, उसके कारण उन्होंने पूरी चाइनीज इकोनॉमी को बैकफुट पे डाल दिया। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो उनकी नो कोविड पॉलिसी थी ये चलेगी नहीं, और उनके इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी डाटा बहुत डाउन आ चुके हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर स्लोली ओपनिंग अप टू ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे देश के भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और उनके लिए भी, जिनकी पढ़ाई 2 साल से रुकी है, जिनके करियर 2-2 साल पीछे चले गए हैं, उन सब के लिए एक मौका है कि वापस अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करने का। ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है या आ रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना 2 मेजर इकोनॉमीज हैं, दोनों ही माइनस में चल रही हैं। सर देखो, जीडीपी डाटा यूएस का तो आ ही चुका है, दूसरे क्वार्टर का भी। इस बार वो -0.9% गए हैं, और पिछली बार वो 1.8% या 1.9% उनकी जीडीपी डाउन थी। तो ऑफिशियली एज पर अगर सिर्फ देखें तो इट इज अ क्लियर इंडिकेटर दैट दे आर स्लोइंग डाउन इफ दे आर ऑलरेडी नॉट इन रिसेशन। तो अगर यूएस और चाइना का भी इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि उन्होंने अपना जीडीपी डाटा इस बार शेयर नहीं किया, क्योंकि चाइना नोन है वो ट्रांसपेरेंसी रखता ही नहीं है, तो वहां पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी डाउन है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुने, पिछली बार उन्होंने पिछले क्वार्टर में जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने दी थी कि हम समहाउ अपने जीडीपी डाटास को अचीव करने की कोशिश करेंगे, और इस बार उनकी स्टेटमेंट है कि जितना भी बेस्ट हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। तो क्लियरली वो अपने टारगेट से पीछे हट चुके हैं, और ये सिचुएशन अल्टीमेटली इंडिया पे भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर डालती है। तो बट ये एक हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी दर्शाता है कि जहाँ पे 2 मेजर इकोनॉमीज जिनके साथ हमारे मेजर बिजनेस रिलेशन है, वो नेगेटिव ग्रोथ में, हम ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे चल रहे हैं। पर ये सस्टेनेबल नहीं है, हमें पूरी दुनिया में ही प्रॉस्पेरिटी को देखना है। हम किसी और, अगर दूसरे देशों में प्रॉब्लम आती है तो अल्टीमेटली वो हम पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आज हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गए हैं और मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर बन गए हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो आई होप कि हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं जो इनवर्ड लुकिंग हो, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, ताकि हम इंटरनल कंजम्पशन के बेसिस पे अपनी इकोनॉमी को चलाते रख पाएं। थोड़ी सी इम्पोर्ट्स सब्स्टिट्यूशन करें जहाँ जहाँ पे नेसेसिटी है, और अपनी सप्लाई चेन्स को प्रोडक्टिव करें ताकि इन्फ्लेशन का असर ना आए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत डैमेजिंग होती है पार्टीज के लिए। तो कोई भी जो गवर्नमेंट पावर में, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगते हैं तो मनी सप्लाई कम होती है, उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी अड़चन बन जाती है। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अपनी सप्लाई चेन्स को बेटर करें, अपनी फैक्ट्रियों को बेटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम भारत के अंदर बनानी शुरू करें। यही एक तरीका है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। शुक्रिया सर। सटीक एनालिसिस और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।